Okay, so this is the lecture 5 of thermal radiation. In this lecture, we will discuss about solar radiation, greenhouse effect, effect of radiation on temperature measurement, view factor charts, and numerical. There is one numerical I am discussing in this lecture, and in next lecture we will discuss numerical further. So let us take one by one. This is the solar radiation, and what is this basically solar radiation? सोलर रेडिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम है कि थर्मल रेडिएशन से जो एनर्जी सन से हमारे अर्थ पर आती है वो किस तरह से आती है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने इसको एक नोट्स फॉर्म में बनाया है। देखिए इसमें द एनर्जी कमिंग आउट of the sun is called a solar energy. Definitely this energy reaches the earth in the form of electromagnetic wave after experiencing considerable interactions with the atmosphere. आपको मालूम होना चाहिए कि जो सन से एनर्जी चलती है कुछ समय पर वो वैक्यूम में रहती है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंसर्ट करती है तो वो मीडियम में आ जाती है। तो एटमॉस्फेयर में अंदर आने पर थर्मल रेडिएशन का पोर्शन बदल जाता है। मैं कुछ यहाँ पर डेटा आपको बता रहा हूँ। दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन पर्पज एंड फॉर राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन द सोलर रेडिएशन। द सन इज नियरली अ स्फेरिकल बॉडी विद एन appropriate diameter with an appropriate diameter with an appropriate diameter with an appropriate diameter. How much diameter? This is the 1.4 into 10 to the power 9. 1.4 into 10 to the power 9. Clear? So this one is the 1.4 into 10 to the power 9 is the diameter of the sun, and the mass of the sun is 2 into 10 to the power 30 kilogram. These are the average value. The mean distance of sun from the earth, this is the mean distance, center to center distance, center of the earth to the center of the sun. This is the mean distance is 1.5 into 10 to the power 11 meters. It emits radiation energy continuously at the rate of 3.8 into 10 to the power 26 watt. Can you imagine this amount of energy is emitted by the sun? If suppose whole energy is absorbed by the earth, definitely earth will be fused. However, the rate of energy striking the earth is about 1.7 into 10 to the power 7 watt, 10 to the power 17 watt. Only this amount of energy is striking on the atmosphere. Clear? Rest of energy is scattered or absorbed by some other bodies in the universe. The energy is generated continuously in the sun due to the continuous fusion reaction during which two hydrogen atoms fuse to form one atom of helium. Therefore, the sun can be considered as a nuclear reactor. The temperature in the core region, clear? ये चीज समझिए, the temperature in the core region of the sun is high as 4 into 10 to the power 7 Kelvin. Clear? Can you imagine this amount? This is the core region temperature. However, due to the radiation of energy, the temperature drops to 6000 K at the outer surface of the sun. So this one is the core region. Core region means at the inner surface. Clear? Suppose this is the sun. So at this level, the energy, the temperature is 4 into 10 to the power 7, and at this region, the temperature is 6000 Kelvin at outer surface of the sun. The intensity of solar radiation incident on the surface normal to the sun rays at the outer edge of the atmosphere. इंटेंसिटी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करना दो बॉडी से, एक जो बॉडी है वो सन है, दूसरी आपका एटमॉस्फेयर है, तो इन दोनों के नॉर्मल एक दूसरे के सामने होने चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस नॉर्मल टू द सन्स रेज एट the outer edge of the atmosphere when the earth is at a mean distance from the sun is called the solar constant. So sometimes it is asked that what is a solar constant? So solar constant is the intensity of a solar radiation incident on the surface normal to the sun rays. Clear? The solar constant is usually designated as by the symbol GS, and the value is 1353 watt per meter square. That means this is uniform over all the earth surface.
if you calculate any altitude, this amount 1353 which constant, that's why this is known as the solar constant. Is that clear? This amount of energy is received at a surface per meter square area. So now if you want to calculate the the sun temperature, clear, the sun temperature, so easily you calculate by this. Say, see, this one is the sun and this one is the earth, this one is the earth, clear, this is the earth atmosphere, this one, clear, and earth is moving in this orbit, clear. The distance of sun, the radius of sun is smaller, and the distance, this one is the, in the above L is the mean distance between sun center and the earth atmosphere. इन दोनों के बीच की distance कितनी है? L, clear. तो आप अगर इस body को देखें तो this is the smaller body and this one is the bigger body. So according to the conservation of energy, the amount of energy GS is transfer, clear. ये जो GS जो है वो आपकी कौन सी एनर्जी है? GS एनर्जी है जो यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर रिसीव कर रहा है, तो वो एनर्जी पर मीटर स्क्वायर है, तो आपने उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द 4 पाई एल स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एल स्क्वायर. और सिमिलरली ये सन को हम लोग एज अ ब्लैक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी क्योंकि स्मॉलर बॉडी है, जितना भी रेडिएशन है वो सारा का सारा रेडिएशन ट्रांसफर कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है. तो दिस इज अ सिग्मा टी टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई द एरिया, सरफेस एरिया. दिस इज अ 4 पाई आर स्क्वायर. So this is the equation number 1. So if this is the equation number 1, in this above equation, L is the mean distance between the sun center and the earth atmosphere, and the sun is considered as the spherical black body, clear. This is the spherical black body of radius r. This is in figure. The left hand side of the equation represents the total energy passing through the spherical surface whose radius is the mean distance between the sun and the earth atmosphere. The right hand side represents the total energy that leaves the sun's outer surface, clear. तो सिंपल इस एनर्जी में अगर आप देखोगे GS की वैल्यू मैंने आपको इसके पहले वाले में मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया. L की डिस्टेंस मैं पहले बता चुका हूँ. तो यहाँ से R भी आपको मालूम है, रेडियस ऑफ द सन मालूम है, तो आप सन का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आप इस इक्वेशन से इफेक्टिव टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो दिस इफेक्टिव टेम्परेचर इज 5762 Kelvin. Here this amount is this is the sun temperature at outer range, या आउटर का जो सरफेस है वहाँ पर सन का एनर्जी है. अगर कोर में देखेंगे तो कोर में आपको टेम्परेचर 10 to the power 11 रेंज का मिलता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. क्लियर. तो नेक्स्ट मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि बड़ा मिथ है इसमें. ग्रीन हाउस इफेक्ट और आप ग्लोबल वार्मिंग, इन चीज़ों को बड़ा आसानी से एक साथ मिक्स कर देते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने के पहले आपको मैं ओपेक बॉडी का एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि जैसे ओपेक बॉडी में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, और ग्लास और लिक्विड को, वाटर को जनरली ओपेक बॉडी एज्यूम किया गया है. तो आप कहेंगे कि सर अगर ग्लास है तो उसमें तो ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं, दैट मीन्स विजुअल रेडिएशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक सर्टेन रेंज का. ये रेंज कौन सी है? वी ऑब्जर्व दैट ग्लास एक्ट एज ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ. इसके लिए आप मैं एक चीज़ और बता दूं कि एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था. तो आप अगर देखोगे जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है उनकी एनर्जी कम होती है, और जिनका वेवलेंथ कम है उनकी एनर्जी ज़्यादा है. क्लियर. तो ये चीज़ आप समझिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसमें देखेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट के वेवलेंथ से या विजुअल के वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये है कि इंफ्रारेड में जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल रेंज. इतनी बात आपको समझ में आई? यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है. ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि वी ऑब्जर्व दैट अ ग्लास एक्ट एज ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन लैम्डा इज ग्रेटर दैन 3 माइक्रोमीटर, इनके लिए ये ओपेक बॉडी ट्रीट होगा. लैम्डा इज ग्रेटर दैन 3 माइक्रोमीटर. देयरफॉर ग्लास इज ट्रांसपेरेंट फॉर लोअर वेवलेंथ रेंज फॉर 0.3 माइक्रोमीटर to 3 माइक्रोमीटर, लेस देन 3 माइक्रोमीटर. 0.3 माइक्रोमीटर से लेस देन 3 माइक्रोमीटर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए, ये वेवलेंथ के लिए ग्लास इज ट्रांसपेरेंट फॉर लोअर वेवलेंथ. क्यों?
क्योंकि वहां पर लोअर वेवलेंथ हायर एनर्जी हो जाएगी। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? कोई भी, ये मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि कोई भी बॉडी लिविंग या नॉन लिविंग है और वो अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर या उससे अबव टेम्परेचर पर है तो वो रेडिएशन एमिट ही करता है। जनरली वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है। नाउ ग्लास अलाउ, अगर आप एक कार देखें, मैं इसका एक मॉडल बताता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने का। आप एक कार को धूप में पार्क कर दीजिए, खासकर गर्मियों की कंडीशन पर, तो आप देखेंगे कि जब आप उस कार में इंसर्ट करते हैं तो उसमें सडनली जो इनसाइड केबिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द आउटर टेम्परेचर। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एनर्जी ट्रैप हो रही है। और वो एनर्जी ट्रैप क्यों हो रही है? क्योंकि अगर जो सन से एनर्जी ड्रॉप हो रही है उसमें आपका अल्ट्रावायलेट तो पास हो गया, क्लियर, और विजुअल रेंज पास हो गया, लेकिन इंफ्रारेड पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एनर्जी कम है, इसलिए उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता, क्योंकि जो ग्लास होता है उसमें थिकर ग्लास होता है। अब होगा क्या कि जो उसके अंदर केबिन का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और अगर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो इटसेल्फ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करना शुरू करता है। तो अब जो वो अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है तो आप जो ग्लास बॉडी है उस ग्लास बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो रेडिएशन इनसाइड केबिन ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से उस सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर? इसी चीज को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन एट रूम टेम्परेचर विच इज द इंफ्रारेड रेडिएशन। नाउ ग्लास अलाउ द सोलर रेडिएशन टू इंटर but does not allow to escape the infrared radiation from interior surface, so automatically interior temperature of the car increases due to the trapping of infrared radiation. This heating effect, which is due to the non-gray characteristic of glass or clear plastic, is known as the greenhouse effect। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इफेक्ट है जिसमें रेडिएशन ट्रैप कर लिया जाता है, किसी जगह पर ट्रैप कर लिया जाए तो उसमें उस जगह का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। इस इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आप अपने सराउंडिंग पर अगर देखोगे तो ये मैंने एक हेमिस्फीयर कंसीडर किया। ये एक्चुअल में ये चीज जो मैंने बनाया है ये सोलर रेडिएशन। अब जो सॉरी ये एटमॉस्फेयर है, ये जो मैंने ये बनाया है ये एटमॉस्फेयर है। इस पर सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो सोलर रेडिएशन में पूरा रेडिएशन जो भी और पार्ट्स हैं वो सोलर रेडिएशन में ट्रांसफर होके जा रहा है। अब जब अर्थ से वापस इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रांसफर हो रहा है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेडिएशन है वो ट्रैप होने लगता है और इनसाइड टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमेशा से होता आया है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही जो क्लाइमेट में चेंज आते हैं वो होते रहे। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो रेट है एनर्जी बढ़ने का वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके पीछे का रीज़न है जो कुछ गैसेस हैं। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ट्रांसमिट बल्क ऑफ सोलर रेडिएशन टू द अर्थ while absorbing the infrared radiation emit by the surface of the earth। इस चीज को समझिए, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वाटर वेपर अवेलेबल है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट भी कर रहे हैं और उसको ट्रांसफर भी नहीं करने दे रहे हैं। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कम से कम डिस्चार्ज करिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो वो उतना ज़्यादा ही इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने लगेगा एटमॉस्फेयर से, और जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है उस रेडिएशन को भी ट्रैप करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अर्थ का टेम्परेचर या हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा। एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस वन वे पैसेज cause the energy to be trapped on earth which eventually result in global warming। is that clear? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक इसके जो चीज़ मैंने आपको याद करिए फिल्म के केस में बताया था कि टेम्परेचर एरर कैसे आती है। मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि एक यही चीज़ रेडिएशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैसे, देखिए एक पाइपलाइन है और उसमें आपने क्या किया, आपने एक थर्मामीटर इंसर्ट किया हुआ है। दिस इज़ द थर्मामीटर। क्लियर? तो आप इसमें अगर ये थ्योरी लगाएं यहाँ पर कि जो रेडिएशन की थ्योरी है, द एरर अकर इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सेंसर ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कैन नॉट अटेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो एक्चुअल टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर है TF, वो एक्चुअल टेम्परेचर इस थर्मामीटर में नहीं आता। थर्मामीटर में ये टेम्परेचर आता है, थर्मामीटर का जो ये टेम्परेचर आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है, यही डिफरेंस एरर है। क्लियर? तो हीट क्या लिखा है मैंने कि device cannot attain the temperature of the medium
to be measured in spite of direct contact because of radiation heat exchange between the sensor and surrounding surface. इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके कारण यहाँ पर ये सही टेम्परेचर नहीं बताएगा. ठीक. लेट अस कंसीडर अ thermometer which is used to measure the temperature of fluid flowing through a duct whose wall are at a lower temperature than the fluid as shown in the figure. जो वॉल टेम्परेचर है TW है और जो वॉल का टेम्परेचर है TW, दिस TW इज लेस देन TF. ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ. दैट इज द केस ऑफ, हियर आई एम कंसीडरिंग द केस ऑफ दैट इज कूलिंग केस, दैट इज TF टेम्परेचर यानी फ्लूइड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द सरफेस टेम्परेचर. तो अगर ये केस है तो उस केस में अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ द थर्मामीटर बल्ब रिसीव हीट फ्रॉम द फ्लूइड बाय कन्वेक्शन. जो बल्ब है उसमें सरफेस और फ्लूइड का कांटेक्ट हो रहा है तो वो कन्वेक्शन हीट कंसीडर कर रहा है. एंड दिस कन्वेक्शन हीट इज इक्वल टू, क्लियर, फ्लूइड बाय कन्वेक्शन while it loses heat by radiation with the duct wall. क्लियर. और ये सिमिलर फैशन में सेम टाइम में जो कन्वेक्शन से हीट रिसीव कर रहा है उतनी हीट ये रिलीज भी कर रहा है. किसको? फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस ड्यू टू द रेडिएशन, क्योंकि ये बॉडी पूरी तरह से इनक्लोज्ड बाय द डक्ट है. क्लियर. तो यहाँ पर मैंने लगाया कन्वेक्शन HTF माइनस TTH, क्लियर, इज इक्वल टू द रेडिएशन. अब रेडिएशन यहाँ पर देखिए तो ये F1 to 2 भी होगा. F मैं अगर इसको फर्स्ट सरफेस मानता हूँ और इसको सेकेंड सरफेस मानता हूँ तो दिस इज द फर्स्ट टू 2, यानी जितना भी रेडिएशन इस छोटे वाले पार्ट से जिसको दिया जाएगा बिगर पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा. दैट मीन्स F1 to 2 इज कंसिडर्ड एज 1. तो इसीलिए मैंने इसको वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी है. एंड वॉल बॉडी इज हैज अ इमिसिविटी एप्सिलॉन एंड डेफिनेटली इट्स अ रियल बॉडी. सो दिस इज एप्सिलॉन सिग्मा TTH to the power 4 minus TW to the power 4 between two bodies. क्लियर. ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से जो फ्लूइड का रियल टेम्परेचर है वो कितना आया? TTH प्लस दिस वन. तो अगर आप देखें कि फ्लूइड का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर इन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस किस वजह से है? इसकी वजह से. इतनी क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी क्यों आई है? ये क्वांटिटी आई है ड्यू टू द रेडिएशन पार्ट. ये इसमें देखेंगे ये मैक्सिमम पार्ट जो है रेडिएशन का, यानी अगर हम इस पार्ट को जीरो कर दें तो हमारा जो एरर है वो मिनिमम हो जाएगी, या जीरो कर दें या मिनिमाइज कर दें तो आपकी जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगी. इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब है, ये जहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक थिन पॉलिश्ड शीट अप्लाई कर दें, लाइक अ रेडिएशन शील्ड. याद होगा आपको, रेडिएशन शील्ड अप्लाई करने में थर्मल का जो पार्ट है, थर्मल रेडिएशन का जो पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा. यानी ये पार्ट जो है थर्मल रेडिएशन का पार्ट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो पर्टिकुलर ये पार्ट अगर रिड्यूस होगा तो डेफिनेट सी बात है कि TF और TTH की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगी और एरर कम हो जाएगी. क्लियर. तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जनरली जो सेंसर्स होते हैं उनमें जो बल्ब होता है जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको पॉलिश्ड कर दिया जाता है, और पॉलिश्ड करने का रीज़न आपको मैंने क्लियरली यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया. ओके. नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये मैं जितने भी व्यू फैक्टर चार्ट्स बोल रहा हूँ इनको आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा. अदरवाइज जब मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप नहीं कर पाएंगे. ये चार्ट्स एक्चुअल में क्या हैं? ये शेप फैक्टर चार्ट्स हैं, और शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर चार्ट्स हैं. तो कुछ ऐसे ज्योमेट्री हैं जिनमें आप डायरेक्टली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. इनमें आपको इवैल्यूएट करने के लिए पूरी ज्योमेट्री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये मैंने देखे यहाँ पर दो चार्ट्स दिखाए हैं. पहला चार्ट है आपका रेडिएशन शेप फैक्टर बिटवीन टू पैरेलल को एक्सियल डिस्क. यहाँ पर देखिए को एक्सियल डिस्क, दोनों के एक्सिस सेम है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. रेडियस अलग अलग हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल तो है लेकिन ये डिस्क यहाँ पर है और ये डिस्क यहाँ पर है, तब के केस में आपकी एक्सिस सेम नहीं होगी. एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक्सियल को एक्सियल हो, एक्सिस सेम होनी चाहिए. अगर इनकी डिस्टेंस L है, R1 R2 है, तो अगर हमको ये पता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है और इनके प्लेट्स के डायमीटर या रेडियस क्या है, तो L/R1 और R2/L अगर हमको रेशियो पता चल जाए तो सिंपल है कि आपको तीन चीज़ें हैं. यहाँ पर आप तीन ग्राफ देख रहे हैं. एक्स एक्सिस पर L/R1 है, वाई एक्सिस पर F1 to 2 है. तो आप यहाँ से L/R1 और R2/L के इंटरसेक्शन से शेप फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूँ कि सपोज करो कि आपका L/R1 और R2/L 1 आ रहा है. सपोज करो ये वैल्यू है और ये वैल्यू 1 आ रही है.
तो यहाँ से आप सीधे इसका शेप फैक्टर देख सकते हैं कितना है 0.4, तो शेप फैक्टर यहाँ से डायरेक्टली इवेल्युएट हो सकता है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है रेडिएशन शेप फैक्टर बिटवीन टू परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर विद कॉमन एज, यानी इस तरह का कोई शेप दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आप एक रूम कंसीडर कर रहे हैं, तो रूम में अगर आप देखेंगे जो फ्लोर है और जो वॉल है वो इसी तरह का कुछ कंसीडर होगा। क्लियर, एक ये फ्लोर है और ये वॉल है, तो इसमें आप शेप फैक्टर 1 to 2 या 2 to 1 अगर आपको कंसीडर करना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर, z/x का रेशियो और y/x का रेशियो आपको अगर पता है तो शेप फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये शेप फैक्टर्स के जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप डाउनलोड करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो इसको आप जरूर प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और कौन से व्यू फैक्टर्स हैं? ये 2 व्यू फैक्टर्स किसके लिए हैं? ये हैं अगर मैं कोई सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ, रेडिएशन शेप फैक्टर फॉर 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर मैं फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ उस केस में, तो देखिए F1 to 2 आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। F1 to 1 कैलकुलेट करने, F1 to 1 मतलब ये जो छोटा वाला है दिस इज द 1 एंड बिगर वाला जो है वो 2 है, तो F1 to 2 कैलकुलेट करना या F1 to 1 कैलकुलेट करना आसान है एज कंपेयर टू कि F2 to 1 कंसीडर करना या F2 to 2 कंसीडर करना। अगर ये आउटर वाला सरफेस देखें तो F2 to 1 कंसीडर करना और F2 to 2 कंसीडर करना थोड़ा सा इशू हो सकता है। F2 to 1 भी उतना इशू नहीं है जितना F2 to 2 का है। तो आप यहाँ पर देखें तो आपको अगर रेडियसेस मालूम है R1/R2 और L/R2, तो यहाँ से आप F2 to 1 कंसीडर डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिमिलर फैशन में अगर आपको R1/R2 और L/R2 पता है तो आप F2 to 2 भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था अबाउट शेप फैक्टर। और मैं कुछ और बताता हूँ। ये टोटल 6 आपके शेप फैक्टर की चार्ट्स हैं। लास्ट ये चार्ट्स 2 हैं। ये चार्ट्स कौन कौन सी हैं? रेडिएशन शेप फैक्टर बिटवीन 2 पैरेलल कोएक्सियल डिस्क ऑफ इक्वल डायमीटर। वो डिफरेंट डायमीटर्स की थी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर डायमीटर सेम है तो आप डायरेक्टली d/x से आप सीधे F1 to 2 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ और जो मैंने सबसे पहले बताया था दोनों सेम है, दोनों आप वहाँ पर रेडियस इक्वल भी रखेंगे तब भी सीधे चीज़ मिल जाएगी। हाँ, ये चीज़ आपके लिए नया है, रेडिएशन शेप फैक्टर बिटवीन पैरेलल रेक्टेंगल्स। अगर आपका कोई पैरेलल रेक्टेंगल है, यानी जैसे आप एक रूम कंसीडर करते हैं और आपका फ्लोर है और रूफ है और फ्लोर टू रूफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं या रूफ टू फ्लोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। और डायरेक्ट ये चीज़ें आप ज्योमेट्री से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन शेप फैक्टर से ये चीज़ें कैलकुलेट जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये x/z की डायरेक्शंस दी हुई हैं, तो अगर रेशियो x/d आपको पता है और रेशियो y/d पता है तो यहाँ से आपको y एक्सिस पर ये है, ग्राफ ये है, तो यहाँ से ये शेप फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनका कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने पहले के ग्राफ बताए हैं, बस इनमें आप चीज़ों को कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं इसमें एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहा हूँ अबाउट शेप फैक्टर की, किस तरह से शेप फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स लिए हैं। कैलकुलेट द शेप फैक्टर और व्यू फैक्टर F1 to 2 आपको बताना है एंड F2 to 1 फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्री। इसमें आपको फिगर ए के लिए F1 to 3 की वैल्यू, 1 to 3 की डायरेक्ट वैल्यू 0.17 दे दी गई है। क्लियर, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब मैं सबसे पहले ज्योमेट्री लेता हूँ। यहाँ पर आपको F1 to 2 बताना है। 1 सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है, 1 to 2 आपको बताना है। तो 1 to 2 आप कैसे बताएंगे? पहले तो आप यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरम लिख दीजिए। क्या? A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी F2 to 1। ये देखिए F2 to 1 इज इक्वल टू A1/A2 F1 to 2। और इसके बाद मैंने इसमें समेशन रूल लगाया। क्लियर, इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कॉमन सेंस यूज करिए कि कैसे आपको शेप फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा केवल ऑब्जर्व करके शेप फैक्टर निकल पाए। जैसे मैंने अगर यहाँ पर समेशन रूल 1 के लिए अप्लाई कर दिया तो F1 to 1 प्लस F1 to 2 प्लस F1 to 3 इज इक्वल टू 1। अगर आप देखेंगे ये एक डिस्क मतलब ये एक प्लेट है और प्लेट क्या है? फ्लैट है। दैट मीन्स F1 to 1 इज कंसिडर्ड एज 0। दैट मीन्स F1 to 2 प्लस F1 to 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो F1 to 2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1 to 3 लिख सकते हैं। F1 to 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से F1 to 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.83। क्लियर, और यहाँ पर F1 to 2 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, जो रेसिप्रोकल थ्योरम मैंने लगाई थी,
तो F221 की वैल्यू आपको क्लियरली दिख जाएगी। तो F122 की वैल्यू क्या आ गई 0.83 और F221 की वैल्यू क्या आ गई 0.21। क्लियर, 0.21। तो ये पहले पार्ट के लिए दोनों चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर दी। अब सेकेंड पार्ट, एक आर्बिट्ररी कोई वैल्यू कोई सरफेस है, उसको आपने बिगर सरफेस से ढका हुआ है। बिगर सरफेस फर्स्ट है और स्मॉलर सरफेस 2 है। अब इसमें आप देखिए, अगर आप ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो ज्योमेट्री अप्लाई करने में मैंने पहले अप्लाई किया, यहाँ पर F122 निकालना है और F221 निकालना है। तो मैंने फर्स्ट के लिए समेशन रूल लगाया, F121 प्लस F122 इज इक्वल टू 1। क्लियर, दैट मीन्स F122 क्या होगा 1 माइनस F121 होगा। इतनी बात समझ में है। अगर मैं इसको सेकेंड सरफेस के लिए अप्लाई करता हूँ तो F222 प्लस F221 इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसको अप्लाई किया था क्योंकि आपको ये दिखाना था कि आप कॉमन सेंस कैसे, आप अगर पहले सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर F121 की वैल्यू आप कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर आप सेकेंड सरफेस में समेशन रूल लगाते हैं तो आप लिखेंगे F222 प्लस F221 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर F222 यानी स्मॉलर बॉडी को बिगर बॉडी ने ढका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि F222 इज इक्वल टू 1। ये ज्योमेट्री से डायरेक्टली आपको पता है। तो यहाँ से F221 इज 1, देन F221 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, F221 इज इक्वल टू 1। तो A2F मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरम लगाया, A2 F221 इज इक्वल टू A1 F122, दैट मीन्स F122 इज इक्वल टू A2 बाई A1 F221। इज दैट क्लियर। तो F122 F221 की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी A2 अपॉन A1। तो F121 कितना हो गया, ये देखिए F121, F121 is equal to 1 minus F122, 1 minus F122, this is the A2 by A1। तो यहाँ से आपको F122 ये निकल गया और F221 is equal to 0 है। यहाँ पर F221 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 आएगी। मैंने यहाँ पर F121 एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अब ज्योमेट्री सी पर आते हैं। ज्योमेट्री सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये पहला सरफेस है, सेकंड सरफेस है, तीसरा सरफेस है और तीनों के एरिया सेम, तीनों सरफेसेस के एरियाज अगर सेम है तो यहाँ पर मैंने समेशन रूल फर्स्ट के लिए अप्लाई किया, F121 प्लस F122 प्लस F123 इज इक्वल टू 1। तो आप अगर देखोगे ये तीनों सरफेस क्या है, फ्लैट प्लेट है। क्लियर, अगर ये फ्लैट प्लेट है तो F121 भी 0 होगा, F222 भी 0 होगा, F323 भी 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो F121 को अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है F122 प्लस F123 इज इक्वल टू 1। ये देखिए F122 इज इक्वल टू 1 माइनस F123, क्योंकि F121 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपकी जो समीशन रूल आपने अप्लाई किया वहाँ से आ गया। अब मैं सेकंड सरफेस में देखता हूँ F222 प्लस F221 प्लस F223 इज इक्वल टू 1, F222 भी 0 हो गया, तो F223 इज इक्वल टू 1 माइनस F221 आ गया। ठीक, अब सिमेट्री रूल आप अप्लाई कर सकते हो। सिमेट्री रूल इसलिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि तीनों के एरिया सेम और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने याद करिए सिमेट्री रूल तभी बताया है जब एक दूसरे से कनेक्टेड सरफेसेस होंगे और एरियाज अगर सेम होंगे। इसका मतलब है कि 1 to 2 इज इक्वल टू 1 to 3 या 2 to 1 इज इक्वल टू 2 to 3। इज दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F1 to 2 इज इक्वल टू F1 to 3 बिकॉज एरियाज आर सेम। क्लियर। सिमिलरली इफ 1 to 2 इज इक्वल टू 1 to 3 दैट मीन्स F1 to 2, इस इक्वेशन में देखिए F1 to 2 इज इक्वल टू F1 to 3, ये होगा। क्लियर। F1 to 2 इज इक्वल टू F1 to 3 विच सिंपली मीन्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है तो क्या होगा, दिस वैल्यू 0.5, दिस वैल्यू 0.5, तो दोनों का समेशन क्या होगा 1। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से ये 0.5 वैल्यू आ गई। अब मैं पहले वाले सरफेस पे रेसिप्रोकल थ्योरम जो मैंने अप्लाई की थी A1 F1 to 2 इज इक्वल टू A2 F2 to 1, या आप ये कह सकते हैं कि 1 to 2 इज इक्वल टू 2 to 1 बिकॉज एरियाज आर सेम। ये चीज़ एरिया अगर सेम है तो यहाँ से F221 की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 1, तो F221 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज द 0.5, दैट मीन्स F221 इज 0.5। ठीक, तो F223 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.5, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 0.5। इज दैट क्लियर। तो ये जो है इसका कोई थंब रूल नहीं है, इसमें आप कॉमन सेंस यूज करिए और जो आपका जो ज्योमेट्री बनी हुई है उस ज्योमेट्री में आप मैक्सिमम चीज़ें ऑब्जर्व करके कैसे निकाल सकते हैं ये चीज़ देख सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो जो मैंने 6 चार्ट्स बताई हैं उन चार्ट्स में आप वैल्यू देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये शेप फैक्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, एक इंट्रोडक्टरी न्यूमेरिकल था। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और भी हैं जिनमें शेप फैक्टर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेडिएशन में एक बार आपका अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बन गई तो केवल शेप फैक्टर अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम लोग फर्दर इसके आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।